स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कुछ कंस्ट्रेंट रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी is constrained in some way or another. If this is a table and this is a long table and there is a block over it, if I push the block is constrained to move in horizontal direction on the table. The block cannot go up or down. The constraint arises because of the fact that the block is placed on the table, therefore it can only move horizontally. It is not allowed to move vertically if forces are horizontal. अब आप इसको उठा लोगे तो बात अलग है, but if the forces are horizontal or you throw the block on the table and leave it, the block is constrained to move on the table. It cannot go down and it cannot go up. Similarly, if this is floor and these are two walls in your room, ये फ्लोर है और ये आपके कमरे की दो दीवारें हैं, एक बॉल को अगर आप ऐसा रोल करके छोड़ दो, this ball will go and hit the wall, it will rebound, it will come back and again hit this wall, and then again it will rebound and go back in this direction. So if I say that this is x is equal to 0 and this is x is equal to L, this is x axis, let us say, then our ball is constrained to move along x axis between x is equal to 0 and x is equal to L. The ball can never be found at a point having coordinate greater than L. Similarly, ball cannot be found to the left of this point. So motion of ball is constrained between x0 and xL. Motion of this block is constrained to happen over the table only. So usually the objects that we see to be moving, they are more or less, most of them are constrained to be moving in certain fashion. So many a times there are connected objects, there are objects which are in contact with one another, and the motion of two objects might be related to one another. They may not be independent of one another. So relationship between motion of two or more objects, when they are constrained, when they are bound to move in certain fashion, how to derive those relations, that is what we will study today. Take this simple example. This is a block, there is another block, and the two blocks are connected by an inextensible string. Inextensible. Inextensible string means this string is not a rubber band, it is not a spring, its length is fixed, its length cannot increase. So if I pull this block, the two blocks will always undergo same displacement. The two blocks will always cover same distance. Whatever is the speed of this block will also have same speed, because these two are constrained to move together. If you pull this block, the string is inextensible, it is not stretchable. In that case, if this block goes by distance of 1 meter, this one will also move in the same direction by distance of 1 meter. So these two blocks are constrained to move in a fashion such that they always have same velocity, they always have same acceleration, they always have same displacement. Consider this situation. This is a pulley and a thread is passing over the pulley and two blocks are suspended at the two ends of the thread. Now if you release this system and this block is heavier, then it will go down
and this will go up. Once again, if the string is inextensible, length of the string is constant, then whatever distance this block travels in downward direction, same amount of distance this one will go in upward direction, because length of the string is constant. तो अगर ये ब्लॉक यहाँ 5 सेंटीमीटर नीचे आता है, इधर रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो ये ब्लॉक 5 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, यहाँ रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। रस्सी की लंबाई यहाँ 5 सेंटीमीटर बढ़ी, यहाँ कम हो गई, तो ओवरऑल रस्सी की लेंथ फिक्स रही। तो ये ब्लॉक अगर x चलता है नीचे, ये ब्लॉक x चलेगा ऊपर, इसकी स्पीड अगर v है तो इसकी भी स्पीड v है। अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a है, हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो दीज टू ब्लॉक्स आर कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन दिस फैशन, दैट दे ऑलवेज हैव equal and opposite displacement, equal and opposite velocity, equal and opposite acceleration। ये ब्लॉक एक पर्टिकुलर फैशन में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनके दोनों के मोशन में एक फिक्स्ड डेफिनेट रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप बड़ा ऑब्वियस है। कई इंस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें रिलेशनशिप इतना ऑब्वियस न हो। दो ऑब्जेक्ट्स के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप एकदम ऑब्वियस न हो, ऐसे सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। उन सिचुएशंस में हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को कैसे रिलेट करेंगे, इसी पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पुली से ही रिलेटेड एक सिंपल कंस्ट्रेंट लेता हूं। आज के हमारे टॉपिक का नाम आप कंस्ट्रेंट रिलेशंस दे सकते हैं, और पहला सिंपल सिचुएशन जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो कुछ ऐसा है। दिस इज ए पुली hanging from the ceiling. This is a block. This is another pulley. This is another block. Let me call it as block 1 and this one as block 2. Now, this pulley P1 is fixed. I mean, it will not go up or down. It is fixed. It may rotate, but it will not change its position. This particular pulley is movable pulley. This pulley P2 is movable. P1 pulley is fixed and P2 is a moving pulley. It can move, it can go up and down. ये कहीं पिन लगा के फिक्स नहीं है। इस थ्रेड को पकड़कर अगर मैं ऐसे ऊपर खींचूं तो ये पुली ब्लॉक के साथ ऐसे ऊपर चलेगी। इस ब्लॉक को नीचे खींचूं तो ये पुली भी नीचे आएगी। हमें इन दोनों ब्लॉक के मोशन को रिलेट करना है। हमें ये पता लगाना है कि अगर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है तो दोनों में क्या रिलेशन है। दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन ढूंढना है हमें, फिर दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन ढूंढना है, फिर इफ़ पॉसिबल दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन ढूंढना है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड रिलेशन बिटवीन मोशन ऑफ द ब्लॉक्स 1 and 2. ओके, अब यहां पे हम ये नहीं कह सकते
कि अगर ये ब्लॉक x नीचे जाएगा तो ये x ऊपर जाएगा। ध्यान से देखिए, हालांकि इनके मोशन में रिलेशनशिप अभी भी सिंपल ही है, बहुत ऑब्वियस है, बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है, सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही हम पता लगाएंगे, लेकिन एकदम भी ऑब्वियस नहीं है कि आप देखते बोल दें कि ये x नीचे तो ये x ऊपर, वो गलत है। यहाँ सबसे पहली कंस्ट्रेंट है, ये रस्सी की लंबाई फिक्स्ड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ब्लॉक अगर 2 सेंटीमीटर नीचे जाता है तो इस पुली को भी 2 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा। ये ब्लॉक और पुली तो आपस में कनेक्टेड है एक सीधी स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, सभी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। That means they are not stretchable. Now 2 and P2, block 2 and P2 will have same motion. If this goes down by a distance of 5 centimeter, this pulley will also go down by a distance of 5 centimeter. Reason being, these are connected by a straight string. So I will draw a diagram for clarity. I am not showing this block 2 because motion of block 2 is same as motion of pulley P2. आप चाहें तो लिख लें, motion of block 2 is same as motion of pulley P2. ये सेंटेंस लिख लीजिए, motion of block 2 is same as motion of pulley P2. तो ये ब्लॉक 2 यहाँ पे है, तो डायग्राम साफ रहे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। मान लो 1 मिनट के लिए 2 काफ़ी भारी है और लेट अस अज्यूम कि ब्लॉक 2 नीचे जा रहा है और ब्लॉक 1 ऊपर जा रहा है। उल्टा भी हो सकता है, अगर 1 काफ़ी भारी हुआ तो 1 नीचे जा रहा है और ये पुली और ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि ये ब्लॉक 2 और पुली नीचे जा रही है और ब्लॉक 1 ऊपर जा रहा है। टाइम 0 पे ये सिस्टम चल रहा है, छोड़ दिया, आपने कैमरे से फोटो खींचा, टाइम 0 पे ये सिस्टम ऐसा दिख रहा है। यहाँ ब्लॉक 2 है, उसको मैंने नहीं बनाया है, ड्राइंग साफ सुथरा रखने के लिए। टाइम 0 पे ब्लैक इंक से जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को बता रहे हैं। मान लीजिए t सेकंड के बाद ये पुली नीचे चलकर यहां आ गई। ये ब्लॉक यहां है, आप चाहे तो दिखा सकते हैं, चलिए यहां पे दिखा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि टाइम 0 पे सिस्टम ऐसा था, अब ये चीज नीचे जा रही है। t सेकंड के बाद लेट अस से ये पुली यहां आ गई और ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक ये ऊपर चढ़कर यहां चला गया। ब्लॉक 1 जो है वो यहां आ गया और ब्लॉक 2 या पुली P2 वो यहां आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो रस्सी है वो रस्सी अब, ये स्ट्रिंग अब ऐसी हो गई। रेड कलर में t सेकंड बाद का सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ब्लैक इंक में टाइम t 0 पे सिचुएशन दिखाया है मैंने, और रेड कलर में किसी लेटर टाइम t का सिचुएशन दिखाया है मैंने। ध्यान से देखिए ड्राइंग को, अपनी कॉपी में खुद से बनाई सोच के। टाइम 0 पे रस्सी ऐसी थी, ये एक ही रस्सी है यहां से यहां तक, ये सिंगल स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ फिक्स है, फिक्स लेंथ, बदल नहीं सकती, इनएक्सटेंसिबल है। थोड़े समय बाद ये पुली यहां आ गई, तो ये जो रस्सी है ये पुली के अराउंड घूमती हुई ऐसे जा रही है। ये रस्सी तो यहां छत से बंधी है और पुली के नीचे से पास हो रही है, तो पुली जब नीचे आई तो ये रस्सी भी डेफिनेटली ऐसे हो गई।
आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर ये पुली x2 डिस्टेंस नीचे आई तो ये जो रस्सी है इसकी लंबाई यहाँ पे x2 बड़ी हो गई और यहाँ भी x2 बड़ी हो गई। अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि अगर ये पुली x2 नीचे जाती है तो ये रस्सी यहाँ से यहाँ के बीच में x2 प्लस x2 2x2 इसकी लंबाई बढ़ गई। ये रबर बैंड तो है नहीं कि इसकी लंबाई बढ़ेगी। अगर रस्सी इस सेगमेंट में लंबी हो गई तो कहीं ना कहीं छोटी भी हो गई होगी। कहाँ छोटी हुई रस्सी? ये ब्लॉक ऊपर चला गया, ये ब्लॉक x1 डिस्टेंस ऊपर चला गया। इस ब्लॉक के ऊपर जाने से जो रस्सी ऐसे हुआ करती थी वो रस्सी अब यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये ब्लॉक यहाँ पहुँच गया, रस्सी यहाँ से चल रही है अब ऐसे। तो इस पुली के लेफ्ट साइड में रस्सी की लेंथ x1 कम हो गई। पहले रस्सी यहाँ से यहाँ तक थी, अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ये ब्लॉक अगर x1 ऊपर गया तो इस पुली के लेफ्ट साइड में रस्सी की लेंथ x1 डिक्रीज हो गई। लेकिन ये पुली अगर x2 नीचे गई, इसके राइट साइड में यहाँ से यहाँ तक रस्सी की लेंथ x2 और x2 2x2 बढ़ गई। ओवरऑल रस्सी की लेंथ तो कांस्टेंट है। तो ये जो रस्सी पहले ऐसी हुआ करती थी, ऐसी, वो अब ऐसी है। तो 2x2 लेंथ बढ़ गया यहाँ और यहाँ लेंथ x1 घट गया। दोनों इक्वल होने चाहिए। बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट सिंस length of the string is constant, therefore 2x2 must be equal to x1 or x1 is equal to 2x2। सिंपल है भाई, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। नहीं समझ पा रहे हो, वीडियो को पॉज कर दो, खुद से अपनी नोटबुक में एक दो बार ये ड्राइंग बनाओ और सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि मान लो टाइम 0 पर ये ब्लॉक यहाँ था, रस्सी ऐसी जा रही थी। ब्लैक इंक में जो डायग्राम दिख रहा है वो टाइम 0 का डायग्राम है। अब ये सिस्टम मूव कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। t सेकेंड्स के बाद ये जहाँ था वहाँ से x1 ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, और उसी t सेकेंड में ये पुली जहाँ थी या ये ब्लॉक जहाँ था उससे x2 नीचे आ गया, x2 नीचे आ गया। तो पुली अगर यहाँ x2 नीचे आती है तो जो रस्सी ऐसे जा रही थी वो अब ऐसे जाती है, इसलिए लंबाई x2 और x2 2x2 एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए यहाँ पे। पहले रस्सी ऐसी थी, अब ऐसी है, तो 2x2 एक्स्ट्रा लेंथ होने से ही तो पुली यहाँ पहुँच पाएगी। तो ये रस्सी को लेंथ 2x2 और चाहिए, कहाँ से मिलेगा? रस्सी की लेंथ तो फिक्स्ड है। तो ये ब्लॉक जो ऊपर गया, इससे यहाँ पे रस्सी छोटी हो गई, रस्सी इधर पास हो गई, इस पुली से रस्सी इधर पास हो गई। ये ब्लॉक जितना ऊपर गया उतनी ही रस्सी यहाँ से इधर पास हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, और वही रस्सी यहाँ पे आधा और आधा बट गई। ये जितनी रस्सी छोटी हुई x1 और यहाँ जितनी रस्सी लंबी हुई x2 प्लस x2 2x2, बोथ मस्ट बी सेम, क्योंकि इधर से ही रस्सी इधर गई जो यहाँ और यहाँ दिखाई दे रही है मुझे, और तो रस्सी कहीं से आएगी नहीं, इट हैज़ गॉट फिक्स्ड लेंथ। सो देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स इज दिस रिलेशनशिप, x1 इज इक्वल टू 2x2। ऑफ कोर्स यहाँ हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं। वी हैव considered that this block is moving down and this one is going up. This one has gone up by x1 and this one has gone down by x2, and the relationship is x1 is equal to 2x2. Now, if at this instant speed of this block is v1, what is the speed of this block at this instant? We all understand speed is rate of change of distance traveled or velocity is rate of change of displacement.
So if you differentiate this equation with respect to time, इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dx1 by dt is equal to 2 times dx2 by dt. What is dx1 by dt? x1 का रेट ऑफ चेंज, x1 क्या है? इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है? इस ब्लॉक की वेलोसिटी. dx1 by dt क्या चीज है? आंसर है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1. सिमिलरली व्हाट इज x2? ये पुली अगर x2 नीचे आई है तो ये ब्लॉक भी अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ये ब्लॉक कहीं यहाँ रहा होगा पहले, ये ब्लॉक भी अपने ओरिजिनल पोजीशन से x2 नीचे आया, पुली और ब्लॉक सेम चलेंगे. तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x2 है और उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इस ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई. ऐसे कॉमन सेंस से भाई हम ये कह रहे हैं आपको कि सोच के देखिए, अगर ये पुली या ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे जाता, 1 मीटर, तो दिस ब्लॉक मस्ट क्लाइंब अप बाय 2 मीटर, because going down by a distance of 1 meter means increase in length of 2 meter of this segment of the spring. ये पुली 1 मीटर नीचे गया तो इधर भी 1 मीटर चाहिए, इधर भी 1 मीटर चाहिए, तो 2 मीटर लंबी रस्सी कहाँ से आएगी? यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आएगी, ये ब्लॉक 2 मीटर ऊपर चला जाएगा. तो व्हेन दिस मूव्स डाउन बाय 1 मीटर, दिस गोज अप बाय 2 मीटर. कॉमन सेंस से हम कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी v तो इसकी 2v होगी. When this goes down by 1 meter, this goes up by 2 meter. So if velocity of this is v, velocity of this must be 2v. This is what we have written. If you differentiate once again with respect to time, the blocks might be accelerating. So if you differentiate this again with respect to time, dv by dt is acceleration. So dv1 by dt means acceleration of this block. If this block is going up with acceleration a1 and this block is going down with an acceleration a2, then relationship is a1 is equal to 2a2. So all are very similar relations, displacement, velocity and acceleration. आप किसी एक को समझ गए तो बात खत्म. किसी भी टाइम इंटरवल में ये जितना चलेगा उसका डबल ये चलेगा. ये तभी पॉसिबल है जब इसकी स्पीड का डबल इसकी स्पीड होगी, इसके एक्सेलरेशन का डबल इसका एक्सेलरेशन होगा. सो इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर तो इसका 2 मीटर, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड तो इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So these two objects have been connected in a particular fashion. They are constrained to move in a particular fashion. ये नहीं हो सकता कि ये 1 मीटर चले और ये भी 1 मीटर चले. यहाँ कंस्ट्रेंट ये है, इनका कनेक्शन आपस का एक कंस्ट्रेंट बना रहा है, एक मजबूरी बना रहा है, जो मजबूरी तय करती है इसके डिस्प्लेसमेंट का डबल होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स उल्टे डायरेक्शन में. इसकी स्पीड का डबल होगा इसका स्पीड ऑलवेज, इसके एक्सेलरेशन का डबल होगा इसका एक्सेलरेशन. सो दिस इज वन एग्जांपल वेयर टू ऑब्जेक्ट्स हैव बीन कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन अ पर्टिकुलर फैशन. दे हैव बीन सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड सच दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक इज ऑलवेज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक. So this is the kind of relationships you might require to find in questions of kinematics as well as question of dynamics, which we will study later on. आगे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखेंगे कि इसका मास पता हो तो इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है. उस समय हमें इस रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी. Now let me ask you a question.
कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि थोड़ी देर में ये ब्लॉक पुली से टकरा जाएगा। ठीक है, जब टकरा जाएगा तब की बात अलग है, अभी बहुत ऊंचाई पे है पुली, ऐसा सोचना है, और अभी पुली तक नहीं पहुंच रहा है। तो जब तक ये पुली से नहीं टकराता तब तक के लिए हमने जो रिलेशन लिखा वो वैलिड है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, टेबल के एक किनारे पे यहाँ एक पुली फिक्स्ड है, इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से बांधा गया है, ये स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से ऐसे पास होता है, और यहाँ एक और पुली है, और ये स्ट्रिंग ऐसे जाके यहाँ फिक्स हो जाता है। यहाँ एक और ब्लॉक है, ब्लॉक 2, ब्लॉक 1। फिर से ये पुली P1 जो है वो फिक्स्ड है, वो चल नहीं सकती, आप देख रहे हैं टेबल पे बंधी हुई है, बट दिस पुली P2 इज मूवेबल पुली। व्हेन ब्लॉक 2 गोज डाउन दिस पुली विल ऑल्सो गो डाउन। ये दोनों एक रस्सी से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। तो P2 इज अ मूविंग पुली। ओके, इस क्वेश्चन में फिर से आपको बताना है इसकी स्पीड और इसकी स्पीड में क्या रिलेशन है, इसके एक्सेलरेशन उसके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। वीडियो पॉज करके बताइए, जरूर कीजिए, जरूर सोचिए। आप में से कुछ लोगों ने देखते ही आंसर बता दिया होगा। अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रहा था, इसको उठा के मैंने टेबल पे रख दिया, बाकी सब सिस्टम तो वैसा ही है। अगर मैं टेबल हटा के इस ब्लॉक को यहाँ ऐसे लटका दूं तो उससे इसके और इसके मोशन का रिलेशनशिप नहीं बदलता। देखो अभी भी वो जो हमने कहा वो सब ट्रू है। अगर आप टाइम 0 पे डायग्राम इमेजिन करो और लेट अस से कि t सेकंड के बाद ये पुली जो है वो यहाँ आ गई। मान लो ब्लॉक 2 नीचे जा रहा है, नीचे ही जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, अपने आप छोड़ दोगे तो ये रस्सी अब ऐसी हो गई। अगर ये ब्लॉक पुली या ये ब्लॉक जो भी कहो, ये अगर x2 डिस्टेंस नीचे आया तो यहाँ पे रस्सी की लंबाई x2 बड़ी हो गई, यहाँ भी बड़ी हो गई। ये पुली अगर 1 मीटर नीचे आता है तो यहाँ 2 मीटर रस्सी चाहिए, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। तो ये पुली जब x2 नीचे आया तो यहाँ जो रस्सी है वो 2x2 लंबी हो गई। रस्सी 2x2 लंबी हो गई, उतनी कहीं छोटी भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है ये चलकर यहां आ चुका है, ये चलकर यहां आ चुका है। अब ये रस्सी ऐसी है, एक्चुअली यहां रस्सी अब है नहीं, है कि नहीं। ये ब्लॉक यहां आ गया, तो ब्लॉक जब यहां आया ये x1 डिस्टेंस आगे गया, तो ये रस्सी अब टेबल के ऊपर नहीं है, रस्सी अब यहां से स्टार्ट होती है। ये जो रस्सी की लेंथ थी वो पुली ने इधर ट्रांसफर कर दी, ये जो रस्सी की लेंथ थी x1 वो यहां चली गई, और वही लेंथ यहां और यहां एडजस्ट हो गई। ये पुली जब 1 मीटर नीचे जाती है तो 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर लेंथ चाहिए इसको रस्सी की। वो 2 मीटर कहाँ से आएगा, ये ब्लॉक 2 मीटर आगे अगर चला जाए तो ये जो 2 मीटर रस्सी का हिस्सा है ये इधर ट्रांसफर हो गया, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देयर इज नो डिफरेंस, एंड वी कैन इमीडिएटली राइट दैट x2 का डबल है x1, x2 का डबल होगा x1। एंड सिमिलरली अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे इसकी स्पीड v2 और इसका स्पीड v1, तो v1 इज इक्वल टू 2v2। और एक्सेलरेशन की बात अगर करेंगे, इसका एक्सेलरेशन a2, इस ब्लॉक का a1 इज इक्वल टू 2a2। तो सेम क्वेश्चन है, सेम कंस्ट्रेंट रिलेशन, देयर इज नो डिफरेंस।
चलिए consider this situation. This is a table. There is a wall. There is a fixed pulley. There is a block. Right? Now, let us assume that there is another pulley like this, or let me keep it like this just for a moment. Make it simple. Keep it this way. It is much simpler. Okay, this. Consider this diagram. The string का एक एंड वॉल से बंधा है और ये एक मूवेबल पुली है. दिस पुली कैन बी मूव्ड. आपको अच्छा लगे इसलिए एक ब्लॉक बांध देते हैं. ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है. दिस पुली कैन मूव. ये ब्लॉक 1 मीटर आगे चलेगा तो पुली भी 1 मीटर आगे चलेगी. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ दिस ब्लॉक इज मूव्ड बाय डिस्टेंस x1, इसको मैं पकड़ कर खींचता हूं, then by how much this block will move? If this block is moved by a distance x1, then how much distance this block will cover? वीडियो पॉज करके सोचिए. आप सोच सकते हैं? नहीं सोच पाएंगे. सोच लेंगे आप. x1 will be equal to, rather x2 will be equal to 2x1. Am I right? Am I right? You have to think in this fashion only. It's very simple. एक नया डायग्राम बना देता हूं. This is block 2 and this is pulley. ध्यान दो, ब्लॉक 1 और पुली दोनों का मूवमेंट सेम है. तो ब्लॉक 1 नहीं बना रहा हूं. ऐसा सोचते हैं कि ये पुली जो है वो x1 आगे चली गई. ये ब्लॉक x1 आगे गया तो पुली भी x1 आगे गई, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली एक रस्सी से बंधे हैं. ऐसा अगर ये पुली x1 आगे चला गया तो ऐसे देखो ना भाई, मान लो 1 मिनट के लिए ऐसा सोचते हैं, इस ब्लॉक को यहीं पकड़ के रखा है. 1 मिनट ऐसा सोचते हैं, इस ब्लॉक को यहीं पकड़ के रखा है. इट इज नॉट अलाउड टू मूव. 1 मिनट ऐसा मान लो, और पुली यहां आ गई तो रस्सी की लंबाई एक्चुअली 2x1 बढ़ गई. पहले रस्सी ऐसी थी, अब इस ब्लॉक को तुमने पकड़ लिया और मैंने ब्लॉक को यहां खींच लिया, मतलब रस्सी नहीं, रबर बैंड था. उसकी लंबाई जो है वो x1 और x1 2x1 बड़ी हो गई. पर हम जानते हैं कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो रस्सी की जो लंबाई यहां पे दिख रही है रेड कलर से कि 2x1 बड़ी हो गई, वो एक्चुअल में रस्सी की लंबाई 2x1 बड़ी हो नहीं सकती. टोटल लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो फिक्स्ड है. वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब ये ब्लॉक नंबर 2 अपने ओरिजिनल पोजीशन से 2x1 आगे चला जाए. इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x2 वो 2x1 के इक्वल होना चाहिए. कैसे पता? फिर से सोचना. वैसे ये ब्लॉक यही है, ये रस्सी ऐसी थी. अगर हम सोचें कि सिर्फ ये पुली आगे चली गई x1, तो रस्सी x1 और x1 2x1 लंबी हो गई ना. तो पुली जब x1 आगे गई, ब्लॉक 2 अपनी जगह से न हिले,
तो रस्सी 2x1 लंबी हो गई, जो नहीं हो सकती, रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है। तो रस्सी कहीं तो 2x1 छोटी हुई, अब यहाँ तो छोटी हो नहीं सकती है, तो दीवार पे फिक्स्ड है ये एंड। कहाँ छोटी हुई? रस्सी का ये एंड, बट दैट मीन्स ब्लॉक 2 डेफिनेटली 2x1 आगे गया। तो अब यहाँ रस्सी नहीं है, अब रस्सी एक्चुअली में ये है, ये ऐसे रस्सी जा रही है, ऐसे। तो यहाँ जो लंबाई बढ़ी है x1 और x1 2x1, वही यहाँ पे डिलीट हो गई, छोटी हो गई। ये रस्सी अब यहाँ है ही नहीं, पहले यहाँ होती थी, अब नहीं है। तो ये जो रस्सी की लेंथ कम हुई x2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2x1। यही रिलेशनशिप है। फिर से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी में रिलेशन मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन में रिलेशन मिलेगा। मुझे लगता है इन 3 एग्जाम्पल्स के बाद आपको कम से कम ये बात, ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। ये फिक्स्ड पुली है, ये टेबल है, ये पुली को भी फिक्स कर देता हूं। यहां एक ब्लॉक है, ब्लॉक 2, ब्लॉक 1। देखो सिस्टम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर ये बड़ा ब्लॉक 1 है, एक ही रस्सी है पूरे क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। दिस स्ट्रिंग पासेज ओवर दिस पुली इज फिक्स्ड, ये दीवार से बंधी है, दिस पुली कैनॉट मूव, दिस पुली इज अटैच्ड टू दिस ब्लॉक। तो ये ब्लॉक जितना चलेगा उतना ही ये पुली चलेगी। ये एक फिक्स्ड रॉड है, हार्ड रॉड, जिससे ये कनेक्टेड है। अगर ये ब्लॉक 1 मीटर इधर चले तो ये पुली को भी 1 मीटर इधर चलना होगा, ब्लॉक 1 मीटर इधर चले तो पुली को 1 मीटर इधर चलना होगा। और ऑब्वियसली ये पुली भी फिक्स्ड है टेबल के एज पे। तो ये स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, इन सभी पुलीज में ये और ये फिक्स्ड है, ये पुली मूव करेगी अलोंग विद दिस ब्लॉक। तो आपको बताना है, अगर ये बड़ा ब्लॉक x1 आगे चलता है तो ये छोटा ब्लॉक कितना नीचे जाएगा? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x2 इन टर्म्स ऑफ x1? छोड़ दिया इस सिस्टम को, वेट की वजह से, भार की वजह से ये नीचे जाता है, ये नीचे जाता है तो ये ब्लॉक आगे चलता है। ये अगर x1 डिस्प्लेस हुआ तो ये कितना नीचे जाएगा? वीडियो पॉज करें और आंसर बताएं। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सोचना है कि ये ब्लॉक अगर x1 डिस्टेंस आगे चला आया, ये पॉइंट x1 आगे चला जाएगा, ये पुली x1 आगे चली जाएगी, यहां जो रस्सी दिख रही है वो x1 छोटी हो जाएगी, यहां जो रस्सी दिख रही है वो भी x1 छोटी हो जाएगी, और यहां जो रस्सी दिख रही है वो भी x1 छोटी हो जाएगी। नहीं समझ में आता है? अगर ये दीवार, मैं सिंपली इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा आप, ये दीवार जो है वो यहां थी, अब वो x1 आगे आ गई। ये ब्लॉक जो है, इसका वॉल AB जो पहले यहां था वो अब यहां आ गया, ये x1 आगे आ गया। अब इस टेबल के ऊपर सिचुएशन कैसी दिखेगी आपको?
ऐसी सेम सेम सिचुएशन है, नथिंग डिफरेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये ब्लॉक x1 आगे आया, तो ये जो दीवार है AB ये x1 आगे आ गई। ये वॉल जो पहले यहाँ हुआ करती थी वो शिफ्ट होके यहाँ आ गई। तो बेटा ये पुली तो अपनी जगह से नहीं हिला ना, ये तो वहीं है, लेकिन ये पॉइंट, ये दीवार x1 आगे आ गया, तो ये जो रस्सी है वो x1 छोटी हो गई ना। जब ये दीवार यहाँ थी, यहाँ पे थी, तो ये रस्सी इतनी बड़ी थी, अब वो x1 छोटी हो गई। ऐसे ही ये रस्सी भी x1 छोटी हो गई ना, क्योंकि ये पुली x1 आगे आ गया, और ये रस्सी भी x1 छोटी हो गई। तो सिंपल विजुअल ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि 1 2 3 यहां से यहां के बीच में टोटल 3x1 लेंथ छोटी हो गई रस्सी। ये पूरी दीवार यहां आ गई, तो ये लेंथ x1 कम हो गया, ये भी x1 कम हो गया, और ये भी x1 कम हो गया। तो टेबल के ऊपर जो रस्सी है वो 3x1 छोटी हो गई। तो रस्सी तो फिक्स लेंथ की है, गई कहाँ? तो आंसर है, जब टेबल के ऊपर 3x1 छोटी हो गई तो ये ब्लॉक डेफिनेटली अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ये ओरिजिनल पोजीशन से 3x1 नीचे चला गया। ये अगर 1 मीटर आगे जाएगा तो ये ब्लॉक 3 मीटर नीचे चलेगा, क्योंकि टेबल के ऊपर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 मीटर रस्सी छोटी हो गई, वो 3 मीटर नीचे आ गया। इसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो इसकी 3v होगी। इसी को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे हम, तो v2 विल बी 3v1। ओवरऑल इन सभी एग्जांपल्स में लर्निंग क्या है? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट रिलेशन, तो आप टाइम 0 पे डायग्राम बनाएं कि सिस्टम ऐसा है, थोड़े समय बाद का डायग्राम बनाएं, टी टाइम लेटर का एक डायग्राम बनाएं। ये ब्लॉक आगे आ गया, ये दीवार यहाँ आ गई, ये ब्लॉक नीचे आ गया, अब रस्सी की लेंथ फिक्स है, ये सोचना है हमें। अगर ये x1 आगे आ गया तो x1 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 3 बार x1 कम हो गई रस्सी की लेंथ, वो 3x1 यहाँ नीचे चला गया। चलिए, ये पुली से रिलेटेड, पुली और ब्लॉक से रिलेटेड ऐसे कंस्ट्रेंट थे जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी, सारे एग्जांपल्स एक जैसे थे। ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यहाँ भी पुली और ब्लॉक है, पर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। ये पुली है, बहुत बड़ी बना दी ना, और एक स्ट्रिंग से इस पे 2 ब्लॉक सस्पेंडेड है, 1 and 2। सपोज पुली इज being moved up by velocity v0। पुली को पकड़ के मैं खींच रहा हूं, पुली से 2 ब्लॉक लटक रहे हैं, पुली को मैं v0 वेलोसिटी से ऊपर उठा रहा हूं, ठीक है। जब ये पुली v0 वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो लेट अस से ये ब्लॉक v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। हमें v1, v2 और v0 को रिलेट करना है। एक पुली पे 2 हैंगिंग मास है, पुली को कोई पकड़कर खींच रहा है v0 स्पीड से ऊपर। इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी v1 और v2 है, ऐसा मान लो, v2 डाउन v1 अप।
V1 V2 और V0 को रिलेट करना है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि V1 तो V2 के इक्वल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। V1 V2 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये पुली फिक्स्ड होती, पुली मूव नहीं करती, उस केस में ये जितना नीचे जाता ये उतना ऊपर जाता। पर पुली अभी यहां है, अब यहां चली गई, पुली का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जितना नीचे आए ये भी उतना ही ऊपर जाए। अगर ऐसा हुआ तो पुली को ऊपर जाने के लिए रस्सी कहां से मिलेगी भाई? ये 5 सेंटीमीटर नीचे और ये 5 सेंटीमीटर ऊपर गया, और हम बोल रहे हैं कि पुली 4 सेंटीमीटर ऊपर चली गई। तो पुली ऊपर गई तो यहां और यहां जो रस्सी है वो कहां से आएगी? ये दोनों ने तो आपस में एडजस्ट कर लिया, ये 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर ऊपर। ये तभी पॉसिबल है जब पुली फिक्स्ड हो। पुली यहीं रहे तो ये 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर ऊपर। लेकिन जब पुली खुद ही यहां चली गई तो यहां जो रस्सी है बीच की वो कहां से आएगी? ऑब्वियसली जब पुली मूव कर रही है तो V1 और V2 इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। ये सबसे पहली चीज। अब V0, V1 और V2 को फैक्ट है कि हम कई तरीकों से रिलेट कर सकते हैं। यस, कई तरीकों से रिलेट कर सकते हैं। देखिए फिर से, मान लीजिए कि टाइम 0 पे ये डायग्राम है और t सेकेंड बाद ये पुली यहां आ गई, ऐसा मान लेते हैं। ये पुली x0 ऊपर चली गई, ऐसा मान लेते हैं। जब ये पुली x0 ऊपर गई, इस पीरियड में ये ब्लॉक मान लेते हैं यहां चला आया, ये x1 ऊपर चल गया, और ये ब्लॉक को मान लेते हैं कि x2 नीचे आ गया। कहने का मतलब ये कि टाइम 0 पे रस्सी ऐसी थी, और थोड़े टाइम के बाद रस्सी ऐसी है। ये ब्लॉक अब यहां है, तो रस्सी जो है वो एक्चुअली में यहां से स्टार्ट होके ऐसे जाते हुए और यहां तक जा रही है। रस्सी की लेंथ तो बदली नहीं होगी, रस्सी की लेंथ तो फिक्स्ड होगी, पक्की बात है। हम क्या कह रहे हैं कि टाइम 0 पे स्ट्रिंग ऐसा था, t सेकेंड के बाद ये ब्लॉक यहां चला गया, रेड कलर में देखिए। अब रस्सी ऐसी है, पुली यहां चली गई और ये ब्लॉक यहां चला गया। इस ब्लॉक से रस्सी चली, पुली के ऊपर से पास होती हुई इस ब्लॉक तक आ गई, बट रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है, यही कंस्ट्रेंट है। इससे हम x0, x1 और x2 को रिलेट कर सकते हैं। ऐसा मान लो कि बिगिनिंग में ये जो लेंथ है रस्सी की, ये जो यहां से यहां तक की लंबाई है, लेट अस से L1 है। ये रस्सी ऐसे जा रही है ना, ये L1 है, एंड सिमिलरली ये L2 है, और ये रस्सी पुली के ऊपर से पास हो रही है, तो फिक्स लेंथ है। चलो इसको भी लिख देते हैं कुछ। कितनी होगी ये लेंथ? पुली का सर रेडियस अगर R है तो ये लेंथ कितनी होगी रस्सी की? पाई R, 2 पाई R का आधा। तो रस्सी की लंबाई थी L1 प्लस पाई R प्लस L2। रस्सी की टोटल लेंथ कितनी थी? L1 प्लस पाई R प्लस L2। L1 प्लस पाई R प्लस L2, यही रस्सी की ओरिजिनल लेंथ थी। अब t सेकेंड के बाद सिस्टम ऐसा है, ये ब्लॉक यहां है, रस्सी ऐसे जा रही है, पुली यहां है, ये ब्लॉक यहां है, तो अभी भी रस्सी की टोटल लेंथ तो इतनी होनी चाहिए ना।
चलिए रस्सी की टोटल लेंथ लिखते हैं इस बार। रस्सी की टोटल लेंथ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रस्सी की लंबाई कितनी होगी? यानी गेस, अरे जोड़ घटाव करना है। ये L1 था, L1, उसमें से X1 कम, ये ब्लॉक X1 ऊपर चला गया, अब रस्सी यहां नहीं है। ये जो L1 था उसमें X1 कम, लेकिन उसमें X0 ज्यादा। तो अभी पुली के लेफ्ट में जो रस्सी की लेंथ है वो है L1 माइनस X1 प्लस X0। ये लेंथ L1 थी, ये लाइन थी ऐसी भाई L1 लेंथ की। अब इसको तुमने यहां से X1 छोटा कर दिया, ये X1 कम कर दिया, L1 में X1 कम हो गया, और यहां तुमने इसको ऊपर X0 बढ़ा दिया, ये ऊपर X0 बढ़ा दिया। L1 लेंथ की लाइन थी, नीचे से X1 मिटा दिया, ऊपर में X0 जोड़ दिया। तो अब नई लेंथ कितनी हो गई? L1 में X1 कम, X0 ऐड कर दिया। पुली के ऊपर जो रस्सी पास हो रही है, ये इसकी लेंथ तो अभी भी उतनी है, पाई आर, ये पाई आर प्लस, अब राइट साइड में X0 प्लस L2 प्लस X2, ये ब्लॉक X2 नीचे आ गया। तो यहां रस्सी की लेंथ X0 प्लस L2 प्लस X2, X0 L2 X2। क्या किया मैंने? पहले ये रस्सी थी L1 लेंथ की, ये पाई आर लेंथ की, और ये L2 लेंथ की, L1 प्लस पाई आर प्लस L2, यही रस्सी की टोटल लेंथ थी। अब थोड़े समय के बाद ये पुली यहां है, ये ब्लॉक यहां है, ये ब्लॉक यहां है। तो अब मैं रस्सी की लेंथ लिख रहा हूं, नई लेंथ। L1 में X1 कम, ये लेंथ हो गया L1 माइनस X1, ये L1 था, उसमें से X1 कम, ये L1 माइनस X1 प्लस X0 पाई आर, और इधर हो गया X0 प्लस L2 प्लस X2। तो रस्सी की इनिशियल और फाइनल लेंथ तो सेम होनी चाहिए ना। तो ये सारे टर्म्स देखिए कैंसिल हो गए, और आपको X0, X1 और X2 में रिलेशन मिल गया। रिलेशन मिला 2X0 इज X1 माइनस X2। जी हाँ, पुली का डिस्प्लेसमेंट X0, इसका X1 और इसका X2, इसमें ये रिलेशनशिप है। इसी को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के साथ, तो 2V0 V1 माइनस V2। V0 क्या है? पुली की वेलोसिटी अपवर्ड, V1 क्या है? इसकी वेलोसिटी अपवर्ड, V2 क्या है? इसकी वेलोसिटी अपवर्ड। तो इस सिस्टम के तीनों ऑब्जेक्ट, पुली और ये दो ब्लॉक, ऐसे मूव करेंगे कि इनकी वेलोसिटीज में ये रिलेशन होगा। एक और डिफरेंशिएशन अगर कर दें तो वो एक्सेलरेशन में रिलेशन हो जाएगा, 2A0 इज इक्वल टू A1 माइनस A2। इस रिलेशनशिप को लिखने का एक और तरीका है। ऐसा कुछ क्वेश्चन क्या था, फिर से लिख लेते हैं। ये पुली V0 वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, ये ब्लॉक V1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और ये ब्लॉक V2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। V0, V1 और V2 को रिलेट करना है। ये जो वेलोसिटीज हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड पे खड़े आदमी ने देखा कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी V1, इसकी V2 और इसकी V0। इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर इस पुली में बैठा है, पुली में एक चींटी बैठी है,
इस ऑब्जर्वर के लिए पुली रेस्ट में है। इस ऑब्जर्वर से अगर पूछोगे कि 1 और 2 की वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा दे आर हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी। व्हाट इज v? v is velocity of blocks with respect to the pulley. पुली के रेस्पेक्ट में ब्लॉक्स की वेलोसिटी है v। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, काफी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। और आप में से जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं इस समय, वो तो बहुत ही परेशान हो रहे होंगे कि ये फिजिक्स को अचानक से क्या हो गया, इतनी कठिन होती जा रही है। फिजिक्स इससे भी ज़्यादा कठिन है। प्रॉब्लम ये है, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ पाएंगे। ये मेथड आसान है अगर आप समझ पाएँ तो। जमीन पे खड़े आदमी को पुली की वेलोसिटी v0, इसकी v1, इसकी v2 दिख रही है। पुली में बैठे ऑब्जर्वर को पुली रेस्ट में दिख रही है। जब पुली रेस्ट में हो तो इन दोनों की स्पीड तो सेम होगी। वही तो फंडामेंटल बात है कि ये पुली अगर फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी v डाउन तो इसकी v अप, ये तो पक्की बात है। इस ऑब्जर्वर के लिए पुली फिक्स्ड नहीं है, इसलिए ये बात सही नहीं है। लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए तो पुली चलती ही नहीं, वो तो फिक्स्ड है, ऐसी पुली है, वो खुद को चलता हुआ थोड़ी देखता है। इस ऑब्जर्वर के लिए पुली मूव नहीं कर रही है, एंड दैट इज द रीजन दैट दिस फेलो विल फाइंड दैट बोथ दिस ब्लॉक्स हैव सेम स्पीड, एब्सोल्युटली सेम स्पीड। दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड। इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी इक्वल और ऑपोजिट ही होगी, बिकॉज फॉर दिस ऑब्जर्वर द पुली इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग। So when pulley is fixed, if this string goes down by 1 centimeter, this will go up by 1 centimeter. So this observer will find that this block goes down by 5 centimeter, this block goes up by 5 centimeter. The same is not true for this fellow, but it is absolutely true for this man. Now, what is this V? What is this V? हाँ, मैंने ये लिखा है, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में सिचुएशन है, ये पुली के रेफरेंस फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी है। व्हाट इज दिस v? उसको ऐसा लिख रहा हूं मैं, फॉर ब्लॉक 1, इस ब्लॉक के लिए व्हाट इज दिस v? v अप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 रिलेटिव टू पुली। What is v? It is velocity of this block 1 with respect to this pulley. हम जानते हैं रिलेटिव मोशन की पढ़ाई से कि the same can be written as v1 minus v0. ग्राउंड पे खड़े आदमी ने कहा इस ब्लॉक की वेलोसिटी v1 अप है और पुली की v0 अप है। अगर हम इनसे पूछेंगे कि सर बताइए पुली के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, ही विल से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 रिलेटिव टू पुली इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वी ए माइनस वी बी। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, दिस इज velocity of this block with respect to pulley, जिसको हमने v माना है। ये एरो साइन मैंने लगाए हैं टू इंडिकेट डायरेक्शन, आप प्लस माइनस साइन भी यूज कर सकते हो। आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो ठीक है, सभी पॉजिटिव है। सो द सिंपल रिलेशनशिप इज v इज इक्वल टू v1 माइनस v0, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर ब्लॉक 2,
इस ब्लॉक के लिए, फिर से इस ब्लॉक के लिए ये v क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2, लिख दे रहा हूं यहां, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू पुली। ग्राउंड पे खड़े आदमी ने कहा है इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी v0 है। सो इफ यू आस्क दिस फेलो what is velocity of this block relative to pulley, he will say v2 down, v0 up. If you ask this man what is velocity of this block relative to pulley, he will say velocity of block minus velocity of pulley. डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए मैंने एरो लगाया है। न्यूमेरिकल वैल्यूज में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए आप सभी एरो को हमेशा एक डायरेक्शन में कर दो। देखो एरो की जगह आप प्लस माइनस साइन यूज कर सकते हो। अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो v2 को निगेटिव लिखो, v0 को पॉजिटिव लिखो, सो ऑन। या आप सिंपली ऐसे एरो लगाते हो तो न्यूमेरिकल रिलेशन लिखने के लिए सभी एरोज के डायरेक्शन एक ही तरफ कर दो। मीन्स ये अप है, इसको डाउन करो, इसको फ्लिप करो, ये साइन चेंज कर दो, इसको प्लस कर दो तो ये एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वन डायमेंशन में वेक्टर जोड़ने घटाने का काम आप ऐसे भी कर सकते हो एरोज से। ये सभी एरो एक डायरेक्शन में है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट न्यूमेरिकल रिलेशन। दिस फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन क्या था, भूल गए हम। क्वेश्चन ये था कि ग्राउंड पे खड़े आदमी ने इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v0 और इसकी v2 देखी है। रिलेट दी थ्री वेलोसिटीज। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी अज्यूम दैट लेट अस थिंक ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द पुली। फॉर दिस ऑब्जर्वर लेट अस अज्यूम दैट वेलोसिटी ऑफ दीज टू ब्लॉक्स आर v. So v is not something which is given in the question. It is one variable that we have introduced. So let us eliminate it. From equation 1 and 2, we will eliminate v. To eliminate v, what we need to do is write this is equal to this. So from 1 and 2, v1 minus v0 is v2 plus v0, which means v1 minus v2 is 2v0. देख लीजिए पिछले बार भी शायद यही रिलेशन आया होगा, शायद कि आना ही चाहिए। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ अमंग द वेलोसिटी ऑफ दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे रिलेटिव मोशन से भी हम इन वेलोसिटीज को रिलेट कर सकते हैं। और वो तरीका तो है ही कि टाइम जीरो पे सिचुएशन ये है, टाइम टी पे पुली यहाँ है, ये ब्लॉक यहाँ है, ये ब्लॉक यहाँ है, सोच के, और फिर रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है ऐसा सोचें, वी विल बी एबल टू राइट दिस रिलेशनशिप। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप अपना सकते हो। ओके, ये जो अभी क्वेश्चन मैंने किया फॉर ऑल जेई स्टूडेंट्स, आई अर्ज यू टू अंडरस्टैंड इट वेल। इसको ठीक से आप समझ लीजिए। मेडिकल स्टूडेंट्स में स्किप दिस, लेकिन जो पहला वाला था क्वेश्चन, एक की वेलोसिटी v तो एक की 2v, वो मेडिकल स्टूडेंट भी समझ लें तो अच्छा है। लेकिन ये जो पार्ट अभी मैंने किया, दिस पार्ट कैन बी स्किप्ड बाय मेडिकल स्टूडेंट, द लास्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ पहला कंस्ट्रेंट रिलेशन था जिसमें दो ब्लॉक जो रस्सी में पुली के साथ मिक्स करके बांधे गए थे, उनकी स्पीड वेलोसिटी को रिलेट करना था। दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा अभी हमने लिया जिसमें एक पुली के ऊपर से दो ब्लॉक पास हो रहे हैं, पुली भी मूव कर रही है और दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी को रिलेट करना है। फंडामेंटली ये दोनों क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट थे। ये तीसरा क्वेश्चन, मोटी बात यह है कि कंस्ट्रेंट रिलेशंस कई बार एकदम सिंपल हो सकते हैं
और कई बार ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ मैथमेटिक्स करने की जरूरत पड़ जाए। ये एक रॉड है जो इस वॉल से टिका कर रखा गया है, ऐसे दीवार से टिका कर, जैसे आप एक लैडर घर में रखते हो वैसा है। और लेट अस अज्यूम कि रॉड फिसल रहा है। रॉड फिसल रहा है मीन्स ये रॉड ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे फिसलता जा रहा है, गिर जाएगा ऐसे। ये एंड ए सीधा नीचे आ रहा है वॉल को पकड़ के, एंड बी फ्लोर को पकड़ के ऐसे चल रहा है। ये ऐसा फिसल रहा है, ये पेन दीवार और फ्लोर के बीच में रखा हुआ है, ऐसे फिसल रहा है। एंड ए नीचे आ रहा है, एंड बी राइट साइड को जा रहा है। जिस इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा 30 डिग्री है, उस समय एंड बी की वेलोसिटी वीबी और एंड ए के वेलोसिटी वीए में रिलेशन लिखना है। राइट रिलेशन बिटवीन वीए एंड वीबी when एंगल थीटा इज 30 डिग्री। ये एंगल थीटा बदल रहा है, ये रॉड जैसे जैसे ऐसे स्लिप कर रहा है, ये एंगल थीटा कम होता जा रहा है। जिस वक्त एंगल थीटा 30 डिग्री है, उस समय वीए और वीबी के बीच का रिलेशनशिप हमें लिखना है। यहां पे फिजिकल कंस्ट्रेंट क्या है? कई सारे हैं। पहला, एंड ए वर्टिकली डाउनवर्ड ही चलेगा, ये कंस्ट्रेंट है। इस एंड ए ऐसे नहीं चल सकता, उसको दीवार को पकड़ के नीचे आना है। एंड बी हॉरिजॉन्टली ही चलेगा, ये कंस्ट्रेंट है, मजबूरी है। एंड बी इधर नहीं जा सकता। एंड ए वर्टिकली डाउनवर्ड चलेगा, एंड बी हॉरिजॉन्टली चलेगा। और साथ में उन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो रॉड की लेंथ है, ये फिक्स्ड है। लैडर या रॉड जो भी है, उसकी लेंथ फिक्स्ड है। एल इज फिक्स्ड, इट कैनॉट चेंज। दिस कैन मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस कैन मूव हॉरिजॉन्टली, दिस लेंथ एल इज फिक्स्ड, राइट। तो हम वी और वीबी को कैसे रिलेट करेंगे? लेट अस से किसी इंस्टेंट पे ये लेंथ x है और ये लेंथ y है। ठीक है, इस कॉर्नर O से, इसको ओरिजिन मान लो, पॉइंट B, रॉड का एंड B x डिस्टेंस पे, तो क्या सभी लोग ये समझ जाओगे कि VB इज dx by dt? x क्या है? O से B की दूरी, x के बदलने की रेट, यही तो B का वेलोसिटी है। If x is increasing at a rate of 2 meter per second, it means end B is moving at a speed of 2 meter per second. पॉइंट B जो है रॉड का, उसका x कोऑर्डिनेट है x. The rate at which x is changing, that is the velocity component of point B in x direction. So what is VB? Answer is dx by dt. Similarly, can you tell me what is VA? 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 Many of you have said dy by dt. कहा ना? थोड़ा सा मैं टेक्निकली करेक्ट रहने के लिए यहां पे एक माइनस साइन लगाऊंगा। फिजिक्स में बहुत सारी परेशानियां हैं।
देखो यहां x टाइम के साथ बड़ा हो रहा था, पर यहां जो y है, y क्या है, यहां से a की दूरी, ये y टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, a नीचे जा रहा है, y इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ये नेगेटिव साइन लगाया मैंने बिकॉज y इज डिक्रीजिंग विद टाइम। क्या मतलब? एक्चुअली में अगर आप किसी मैथ वाले से पूछेंगे व्हाट इज dy बाई डी टी, ही विल से -2 मीटर पर सेकेंड। y के बदलने की रेट -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन से मैथ वाला ये बता रहा है कि y इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। व्हेन a फॉल्स डाउन, its distance from O decreases, y is decreasing. So if I say dy by dt is 2 plus 2, then a learned person will understand that A is moving away from O. अगर मैं बोलूं dy by dt 2 है, तो कोई भी समझेगा y 2 यूनिट पर सेकेंड की रेट से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत में यहां A नीचे आ रहा है, y is decreasing with time. तो dy बाई डी टी एक्चुअली में -2 मीटर पर सेकेंड है, पर हमें कहां माइनस प्लस का चक्कर लगाना। हम जानते हैं कि पॉइंट ए नीचे आ रहा है, वी नो दैट पॉइंट ए इज फॉलिंग डाउन। हमें पता है कि पॉइंट ए नीचे आ रहा है, माइनस प्लस नहीं लिखना, हमें तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। हमें पता है कि पॉइंट ए नीचे आ रहा है, लिखा है क्वेश्चन में इट इज कमिंग डाउन। मुझे तो +2 मीटर पर सेकेंड ही लिखना है वी ए, क्योंकि मैंने मुंह से बोल के डायग्राम बना के बता दिया कि भाई ए नीचे आ रहा, अब माइनस क्यों लिखूं? बता तो दिया कि ए नीचे आ रहा है, अब माइनस में क्या स्पेशल है? आई डोंट वांट दैट माइनस साइन, मुझे लिखना है वी ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे dy बाई डी टी लिख दूं अगर मैं वी ए, तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैं लिखूं वी ए इज इक्वल टू dy बाई डी टी, तो एक्चुअली वो -2 मीटर पर सेकेंड हो गया। मुझे माइनस नहीं लिखना है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। डायरेक्शन में कंफर्म हूं कि वो नीचे आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? ये नेगेटिव नंबर है, इसके आगे एक और माइनस अगर लगा दें, इसके आगे एक और माइनस अगर लगा दें तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो dy बाई डी टी है -2, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया, तो अब ये पॉजिटिव हो गया। y इज डिक्रीजिंग विथ साइन टाइम, देयरफॉर dy बाई डी टी इज नेगेटिव। पर मुझे वी ए के डायरेक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% गारंटीड कि वी ए नीचे, प्लस माइनस साइन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। मैं इसका मॉड लूंगा dy बाई डी टी का। dy बाई डी टी का मॉड मतलब, चलो ऐसे लिख देता हूं, वी ए इज मॉड ऑफ dy बाई डी टी विच इज माइनस dy बाई डी टी। ठीक, इसलिए माइनस लगाना पड़ता है मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए। सो वी बी, एक्स इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ वी बी, y is decreasing at a rate of VA. Okay, now there is a clear cut relationship between x and y. X square plus y square is L square, this is always true. X square plus y square is L square, this is always true. If we differentiate this with respect to time, differentiate क्यों? क्योंकि dx by dt dy by dt चाहिए। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x dx बाई डी टी। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के साथ नहीं करना है, टाइम के साथ करना है। ऐसा डिफरेंशिएशन तो जानते ही नहीं हम, चेन रूल लगाएंगे, ऐसा करते हैं डिफरेंशिएशन। याद करो, dx स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। पहले नीचे dx लगाया, ऊपर भी dx लगाया। अब एक्स स्क्वायर को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, और dx बाई dt को वैसे ही लिखा रहने दिया। एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 2x आता,
लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्यों? L इज ए कॉन्स्टेंट, ये 5 मीटर लंबा रोड है, उसकी लेंथ तो फिक्स है, L इज नॉट चेंजिंग, सो dl बाई डी टी इज 0। इसको अगर हम रीअरेंज करें, इट बिकम्स dx बाई डी टी मतलब vb माइनस dy बाई डी टी मतलब dy बाई डी टी मतलब va। यही vb और va में रिलेशन है। अब देखो y अपॉन x, दिस इज tan थीटा। अब जिस समय थीटा 30 डिग्री है उस समय vb tan 30 डिग्री 1/√3 टाइम्स va। ठीक से समझो, ये डिस्टेंस x माना, ये y माना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये कंस्ट्रेंट है। x एंड y विल ऑलवेज रिमेन रिलेटेड थ्रू दिस इक्वेशन। अगला कंस्ट्रेंट है कि एंड b इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, इट्स वेलोसिटी vb इज dx by dt, एंड a इज मूविंग डाउनवर्ड, इट्स वेलोसिटी इज dy by dt। लेकिन एक माइनस साइन के साथ, रीजन मैंने आपको समझाया। तो ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ, जिससे कि dx बाई डी टी dy बाई डी टी इक्वेशन में आ जाए। 2 कैंसिल कर दिया, रीअरेंज कर दिया, y बाई एक्स को tan थीटा लिख दिया। when theta is 30, tan 30 degree is 1/√3 and therefore vb is equal to 1/√3 va। ये रिलेशनशिप हो गया इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी के बीच में। होगा? इसको हम और भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो, समझाने की कोशिश करता हूं। समझना, अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा हूं, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली टेबल फर्श के ऊपर मूव कर रहे हैं, मान लो 1 मिनट सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, विल सेपरेशन बिटवीन देम चेंज? नहीं। ये दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है, ये दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है, ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, इनको जोड़ने वाली ये लाइन, इनके बीच की दूरी r। ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर r के परपेंडिकुलर चलें तो ये r थोड़ी बदलेगा। थोड़ी देर के बाद ये यहां, ये यहां, ये अभी भी r। दे आर नॉट अप्रोचिंग वन अनदर। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ रहे। लेकिन A and B in this diagram are not approaching one another. लेकिन अगर यही दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसी हो, या एक रेस्ट में हो, एक मूव कर रहा हो, या दोनों मूव कर रहे हो लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर हो, जब ऐसा हो
दे आर अप्रोचिंग वन अनदर। ऐसा बल्कि दिखा देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। ए बी, वी बी, वी ए, क्या लगता है? वी बी 5, वी ए 5, आर दे अप्रोचिंग वन अनदर? नो। वी बी भी 5, वी ए भी 5. Will the distance between two particles change? Answer is no. VB is 6, VA is 4. Will the distance between two particles change? Yes, it will keep on increasing because this is moving faster than this. VA is 6, VB is 4. Now distance between these two particles will decrease. So, if VA is equal to VB, separation between A and B do not change. इस केस में दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, ऐसा मैंने माना था सिंप्लिसिटी के लिए, तो सेपरेशन इज नॉट चेंजिंग ऑफ कोर्स. इन दिस केस द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम. ये वो केस है व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम. दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन देम विल नॉट चेंज. इफ VB is greater than VA, separation is increasing. If VA is greater than VB, separation decreases. राइट. अब देखो, ये सिचुएशन इमेजिन करो. ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री का एंगल. बी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री का एंगल. दो पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन ए बी ऐसी है. किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल ए इधर चल रहा है 10 की वेलोसिटी से, बी इधर जा रहा है 15 की वेलोसिटी से. अब हम अगर दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करते, 10 cos 37, खुद करो. cos 37 is 4/5, 8 मीटर पर सेकेंड. 10 sin 37, 6 मीटर पर सेकेंड. बी की वेलोसिटी इधर 15 cos 53 डिग्री. cos 53 डिग्री इज 3/5, 9 मीटर पर सेकेंड. एंड इन दिस डायरेक्शन 15 sin 37 डिग्री, 53 डिग्री सॉरी, sin 53 डिग्री इज 4/5, 12 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स हम मोटा मोटी ऐसे सोच सकते हैं कि पार्टिकल ए के पास दो वेलोसिटी है, इधर 8 इधर 6. पार्टिकल बी के पास दो वेलोसिटी है, इधर 9 इधर 12. मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग
इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग की वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन ए बी, if you look at this, B is going away at a velocity of 9, A is trying to follow it with a velocity of 8. B is moving farther away from A. Distance separation between B and A will increase. देखो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो मोशन है, इसकी वजह से सेपरेशन नहीं बदलता, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है उसमें अगर कोई रिलेटिव मोशन है तो सेपरेशन बदलेगा. सो व्हेन समबडी आस्क्स यू वेदर ए इज गेटिंग क्लोजर टू बी और ए इज गेटिंग फार्दर अवे फ्रॉम बी और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नॉट चेंजिंग एट दिस इंस्टेंट, आंसर. So you should not look at these velocities. You have to look at velocity along the line joining the two particles. एक्चुअली ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो जाती है, इसको मैं कभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग. अभी सिंप्लिसिटी के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन R इस समय लंबी हो रही है, क्योंकि ये 1 सेकंड में 8 मीटर आगे जाएगा, लेकिन ये 1 सेकंड में 9 मीटर आगे चला जाएगा. अगर ये भी 8 होता और ये भी 8 होता, अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती तो दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रही है, ऐसा बोलेंगे. सो इन दिस डायग्राम बी सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज इंक्रीजिंग. अगर कोई पूछेगा व्हाट इज डी आर बाई डी टी, एट व्हाट रेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इंक्रीजिंग, we will say 1 meter per second. रिलेटिव वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी 1 है, ये 8 चलता है तो वो 9 चलता है. हर 1 सेकंड में R की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 1. सो dr by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ R विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज 1 मीटर पर सेकेंड. दो पार्टिकल हैं, दोनों रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे उनके बीच की दूरी बदल रही है कि नहीं, ये R बदल रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको सिर्फ वेलोसिटी का ये कंपोनेंट देखना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स. एक्चुअली इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से ए के रेस्पेक्ट में बी रोटेट कर रहा है, ऐसा हम आगे कभी पढ़ेंगे, बट इट डज नॉट these two velocity components, even if there is relative motion, it will not cause the separation between A and B to change. Separation between A and B changes only when there is relative motion along this line. A और B को जोड़ने वाली लाइन के along अगर वेलोसिटी में फर्क है दोनों के, तो उन दोनों के बीच की दूरी बदलेगी, नहीं तो दोनों के बीच की दूरी नहीं बदलती है, दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट रहेगी. So using this we can easily solve the last question. ऐसा सोचना है आपको. देखिए ये वॉल और ये फ्लोर, ये है रॉड, एंड ए बी. ए की वेलोसिटी वी ए, बी की वेलोसिटी वी बी, ये एंगल थीटा. ए और बी के बीच की दूरी कभी बदलेगी? आंसर है कभी नहीं, रॉड है. ए और बी के बीच की दूरी एल फिक्स्ड है, इट कैन नेवर चेंज. तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ऐसा सोचो, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, और हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल नेवर चेंज. वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल नेवर चेंज. Never change. So if distance between A and B will never change means
along the line joining the two particles they should not have relative velocity. That means इसकी velocity अगर 8 है और इसकी भी अगर 8 ही होती इधर, ये 1 सेकंड में 8 चला, ये भी 8 चला, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग अगर इनकी वेलोसिटी सेम हो तो इनके बीच की दूरी नहीं बदलेगी. हमें पता है कि ए और बी के बीच की दूरी बदल ही नहीं सकती है, रॉड है, एक रिजिड रॉड है, ए और बी के बीच की दूरी तो बदल नहीं सकती. ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ए से बी को जोड़ने वाली लाइन ये है, जैसे यहां पे ए से बी को जोड़ने वाली लाइन ये थी, वैसे ही यहां ए से बी को जोड़ने वाली लाइन ये है. ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट, ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट ए से बी के जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग, लाइन ए बी के अलॉन्ग इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वी ए साइन थीटा. खुद देख सकते हैं आप, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. इसका एक कंपोनेंट ए बी के परपेंडिकुलर है, उसको मैंने नहीं दिखाया क्योंकि हमें सिर्फ इस वेलोसिटी में इंटरेस्ट है. पॉइंट ए बी के पास जा रहा है 8 की वेलोसिटी से, यहां पॉइंट ए बी के पास जा रहा है वी ए साइन थीटा वेलोसिटी से. सिमिलरली एंड बी जो है, this end B is moving away from A at a velocity of VB cos theta. क्या किया था मैंने, A और B की वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए AB के लॉन्ग. A की वेलोसिटी यहां इधर है, इसका टुकड़ा AB के लॉन्ग. B की वेलोसिटी इधर है, इसका टुकड़ा AB के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग, वी बी कॉस थीटा. अब ऐसे सोचो कि ए और बी दो पार्टिकल हैं, ए इधर जा रहा है वी ए साइन थीटा से, बी उससे दूर जा रहा है वी बी कॉस थीटा से, जैसे ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है. अगर इनके बीच की दूरी नहीं बदलनी है, एल रहनी है, तो एक ही तरीके से पॉसिबल है कि ये वेलोसिटी अगर 8 है तो ये भी 8 होनी चाहिए. अगर ये 8 है और ये 9 है तो दोनों के बीच की दूरी बदलेगी. तो दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रही है, ये एक ही तरीके से पॉसिबल है जब वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा. जब पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम सेम हो, v का ये कंपोनेंट और v का ये कंपोनेंट अगर सेम है, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट चेंजिंग. वी ए का ये कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी और वी बी का भी ये कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी. ए फॉलो कर रहा है बी को वी ए साइन थीटा से, बी दूर भाग रहा है वी बी कॉस थीटा से. अगर ये 8 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 8 मीटर पर सेकेंड है तो दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रही है. सो दीज टू शुड बी इक्वल इफ separation between them is not to change. So again you get VA tan theta is equal to VB, which is same as the earlier relation that we obtained. I am pretty confident that for many of you these things must have proved to be very difficult. So if possible you can watch this video again, maybe after a day or two, but please give it a try once more. For medical students, the only part this question in which pulley is moving and there are two blocks, you can skip that part. Remaining all other parts you must try to understand. It will help you in an exam like AIIMS. So students, thank you. In next class we will start with Newton's laws of motion.